ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ, ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। I'm so proud like in Dhurandhar half of the ਉਹਨਾਂ ਨੇ artists ਛੱਡੇ are ਕੁਝ ਨਹੀਂ, Punjabi. ਛੱਡੇ ਕੁਝ Yeah. ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Diljit is like the pride of India. Yes, it is sad to lose such a beautiful artist like Sidhu Moosewala. कितना beautiful future था उनके पास. उस सॉन्ग के कुछ अल्फाज ऐसे थे, मैं तेरा या बलड सोनिए Okay. तू बैकबोन जट दी। I was like, who is this? मतलब ये बायो के टीचर हैं, किसने लिखा है ये? तो दिल्ली पंजाब से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पंजाबियों से भरा हुआ है और हमारे अंदर कूट के पंजाबियत भरी हुई है. You know, when I was coming here and I was telling people कि where I'm going and I was like मुन्ना भैया and they're like oh. इनको थोड़ी आती है कोई यूपी की डायलेक्ट या भाषा, कुछ नहीं आती है इनको भोजपुरी, लेकिन कितना अच्छा छागे वो मुन्ना भैया. Because we love Punjab, we love Punjabis and we love Punjabi food. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਲਾਲੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ and you guys are watching PDC Punjabi. Well, I am here at right now with a very powerful team of Glory. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ and then Karan Anshuman and then Pulkit Samrat and Suvinder Vicky ji. So welcome everybody and welcome to Punjab. I'm very happy you. that you guys are here. Wow, thank you. Likewise. Yeah, because I think जब shall I speak in Punjabi or Hindi? You tell me. Hindi Punjabi match. mix. Because I think yeah, दोनों भाषा ही बोलते हैं, बट पंजाबी चंगा ठीक है. ओके, सो आई थिंक मैंने पंजाबी भी है, मराठी भी है. हरियाणवी भी हैं थोड़े थोड़े, है ना. ओके, सो यू नो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ. I'll translate you. I can see the expressions, that's why मैं साथ साथ में करती रहूंगी. So you know एक लेवल पे जब कोई होते हैं, when we see you guys on Netflix, तो हमें ना एक आ जाते हैं कि यार these guys are coming to Punjab, I want to meet them, I want to see how they speak in Punjabi. ये है एक पंजाब में. So how you guys are liking Punjab? Firstly I want to talk about ये that. आई थिंक जितना आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है जो लोग पंजाब में आ रहे हैं, हमारे अंदर भी उतना ही होता है दैट वी आर गोइंग टू पंजाब, बिकॉज वी लव पंजाब, वी लव पंजाबीज एंड वी लव पंजाबी फूड. Great. तो इट्स जस्ट हमारे लिए भी उतना ही मजेदार और उतना एक्साइटिंग होता है. So let me tell you guys off record, अभी he was asking for लस्सी. So इससे जरूर पता चलता है कि you're like पंजाब आया हूँ तो लस्सी पी कर ही जाऊंगा. हाँ 100%. बटर चिकन खा के जाऊंगा, लेना पड़ेगा आपको. बटर चिकन खा के जाऊंगा, अपना छोले कुलचे खाएंगे, लस्सी पियेंगे, ये फ्यू ऑफ द बेसिक्स. या हमने शूट भी की पंजाब में, हमने अमृतसर में शूट की, हमने पटियाला में बहुत दिन शूट की, चंडीगढ़ में. और अगर एक यूनिफाइंग फैक्टर कोई एक चीज़ है वो हमारे यूनिट का खाना हुआ करता था. जितना भी मुश्किल दिन हो, जितना भी एक्शन, जितना भी इमोशनल, ये खाने के टाइम सब खुश. And that was the best part about shooting in Punjab, I must say. Also the weather was amazing. Yeah. Okay, so Pulkit, firstly I want to tell you, you are Ambar Saria for us. If you remember. You Thank you. remember now? Ji, of course. Yeah. So you are like Ambar Saria for us. So when I was like coming here, of course I was telling people कि I'm gonna interview them. Then he was like, okay, Ambar Saria, मुंडे आवे कच्ची कलियां ना तोड़. So आपका तो एक वो भी कनेक्शन रहा है ना पंजाब के साथ. मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है पंजाब के साथ. पहले तो हम दोनों एक्चुअली दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली पंजाब से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पंजाबियों से भरा हुआ है और हमारे अंदर कूट के पंजाबियत भरी हुई है. मेरे तो घर में सब पंजाबी में ही बात करते हैं, मुझे समझ में आ जाती है पर मैं इतना बोल नहीं पाता पंजाबी में. बट येस, आई एम लकी कि मुझे अंबर सरिया के नाम से भी जाना जाता है. एंड दैट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट टाइटल. आई जस्ट लव इट, आई लव इट. जी. सो सुविंਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਵੈਨਐਵਰ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ
डायरैक्टर तो बिना मतलब मैं अपने बारे अगर मैं गल करा तो मैं तो एक डायरैक्टर का ही एक्टर हाँ, सो आप सरेंडर पॉलिसी अपनी हमेशा कि आपके लिए आया हूँ, ठीक है, इतना का हुनर है कि कर सकता हूँ, करवा लो भाई। बहुत बढ़िया। तो हाँ बस यही है ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੰਝੇ ਕਾਰਨਰਸ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਐਕਟਰਸ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈलेंट ਪਿਆ है मतलब ऑल ओवर। अगर इंडिया की गल करिए तो नेटफ्लिक्स को अभी बहुत सारे खुंजे और छान मारने हैं और बहुत सारे और एक्टर्स निकल के आएंगे और उनके साथ भी मतलब हम ये इच्छा करते हैं कि नए आने वाले लोगों के साथ भी हम काम ज़रूर करें। ਯੂ نو ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਇਨ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ, हाँ जी हाँ जी। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਐਂਡ ਵਹੀ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਜੋਕਸ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ, सब ਨੂੰ है ना। और वो एक हरियाणा का कल्चर जो है वो एक अलग देखने को मिलेगा। सो ये एक बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से जो आजकल हो रही है। ਜੀ ਐਂਡ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि दैट ब्रदरहुड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से एक ही बात हो जाती है कि अगर हम हरियाणवी एक्सेंट भी आपका सुन रहे हैं एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड दे कैन डू दिस टू एज वेल। सो आप लोगों ने हरियाणवी एक्सेंट कैसे पिक कैसे किया है, क्योंकि इट्स वेरी टफ एक्सेंट आई गेस, बहुत टफ हो जाता है। बहुत ही प्यारा एक्सेंट है, बोलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि और हमारे पास एक्चुअली हमने बहुत सारी रिहर्सल्स भी करी थी और हमारे डायलेक्ट कोच भी रहे हैं, कमल उनका नाम है। उन्होंने पूरा हमारा हाथ पकड़ के चले हैं वो ऑल थ्रू द शूट। उन्होंने जहाँ पे कहीं भी गलती होती है वो आके समझा देते थे और उन्होंने सबसे बड़ी हेल्प करी, हमें ग्रामर समझने में हेल्प करी। और ग्रामर समझने से क्या होता है, आप सिर्फ लाइनों पे सीमित नहीं रहते हैं, आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, आपको एक कैनवस मिल जाता है और उस पर एक हर लैंग्वेज के कुछ रंग होते हैं। तो फिर वही हरियाणवी के उन्होंने हमें रंग सिखा दिए जिनसे हम थोड़ी थोड़ी पेंटिंग कर पाएँ। और कोशिश यही रही है कि लोगों को ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया लोगों को वो भाषा समझ में आए और हरियाणा का जो फ्लेवर है वो भी ना निकले। सो वी हैव ट्राइड टू बी लाइक एज क्लोज टू द फ्लेवर ऑफ हरियाणा एज पॉसिबल। ओके सो या आप बताएं हरियाणवी एक्सेंट के बारे में। हरियाणवी एक्सेंट के बारे में देखिए, जैसी बात आपने बोला एक्सेंट है, ये भाषा तो है नहीं। जैसे पंजाबी की अगर हम बात करें तो गुरमुखी होती है उसमें, तो हरियाणा का ऐसा नहीं है, डायलेक्ट है एक। तो हमको काम करते हुए बस एक चीज़ का ध्यान रखना था कि हम लोग उस लैंग्वेज, उस रीजन का लोगों को एक फ्लेवर दें, एक फ्रेग्रेंस दें, एट द सेम टाइम उतना ज़्यादा ना करें कि जिससे लोग एलियनेट हो जाएं या उनको समझने में दिक्कत आने लगे। तो बस एक फाइन लाइन समझ के हम उस पे चले और हमने अपना खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट किया। हरियाणवी थोड़ी सी लेके अपने वर्ल्ड में डाल के उसकी एक अलग डिश बनाई है हमने, तो उसके बीच में हम लोग खेलते रहे। लेकिन हाँ, बहुत बहुत मज़ा आया वो चीज़ करते हुए, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना तरीका होता है, एक अपना अंदाज़े बयां होता है उसको करने का। तो उस बात को समझ के उस पे चलना वो ऑलरेडी आपकी कैरेक्टराइजेशन में बहुत हेल्प कर देता है कि आप किस तरीके से बात बोलते हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से बात को समझते हैं। तो हम लोग जितना हो पाए अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की हमने कोशिश की। अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, हम सबकी तरफ से। या वेल ड्यूरिंग द शूट कभी ऐसे होता था कि पर्सनल लाइफ में भी इफ यू आर टॉकिंग टू समवन यू आर यूजिंग दैट हरियाणवी एक्सेंट? हम सेट पे तो हम लोग करते रहते थे ये मस्ती, मतलब कट भी हुआ उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। हाँ, घर वालों तक नहीं पहुंची थैंकफुली ये बात। मैं जब राहु केतु शूट कर रहा था तो इसके बीच में ही मैंने राहु केतु शूट करी। तो राहु केतु के सेट पे जैसे ही मैं पहुंचा, मेरा डे 1 था
और वहाँ पे मुझे कुछ हिंदी, ऑब्वियसली उसमें हिंदी है पूरी, तो वहाँ पे मैं सिर्फ हरियाणवी एक्सेंट में बोलना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मुझे एक्चुअली 4-5 रीटेक्स लगे टू गेट आउट ऑफ दैट हरियाणवी एक्सेंट, क्योंकि हमने इतनी हरियाणवी बोली है कि घर पे भी जाके यही बात होती थी, उसी लहजे में बात निकलती थी। ओके ओके एक जगह हरियाणवी बोलता था और एक हैदराबाद में जाके सीधा तेलुगु। हिंदी बोली ही नहीं मैंने शायद कुछ अपनी जिंदगी के 8-9-10 महीने, बट यार गुड फन। बट आई थिंक इट्स वेरी फन या यू कैन लाइक आप अपने इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आपको जो कैरेक्टर अडाप्ट करना है, जो लैंग्वेज बोलना चाहते हो, सो आई थिंक आपको वो फ्रीडम मिल जाती है कि आप कुछ भी वहां से ना अडाप्ट कर सकते हो और अपनी जिंदगी में भी लेकर आ सकते Yeah, हो, it's है ना? like it's very close to traveling. Yeah. You know, you go to that area, you know, you discover the food, the language, the people, everything. And in this case, सबसे अच्छी बात ये थी करण ने सब मेहनत करके स्क्रिप्ट बना के हमको दिया था कि you know तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो these are the places you have to go, find, eat and everything. तो बहुत मजा आया वो चीज़ करने में, and I think it's one of the best things we are blessed as artists to, you know, we can you know do that, and you know can be part of different realities at the same time, you know. It just, I think, yeah, it's a very big blessing. Okay, so Karan, you know, you and Devendu already had one collaboration. It was super duper hit. And you know, when I was coming here and I was telling people ki where I'm going, and I was like Munna Bhaiya, and they're like, oh, oh, and even Thakur ji, अरे मुन्ना भैया, तो they are already like so. Karan, आपने कैसे सोचा कि ये लोग हरियाणवी लोगों का किरदार निभा लेंगे? You know, आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि नहीं ये कैरेक्टर्स इन पर ही जचेंगे? क्योंकि ये पहले यूपी से का भी वही बात थी कि इनको थोड़ी आती है कोई यूपी की डायलेक्ट या भाषा, कुछ नहीं आती है इनको भोजपुरी, लेकिन कितना अच्छा छा गए वो मुन्ना भैया के रूप में, तो फिर यहाँ भी होना ही था ये। बिकॉज पुलकित की अगर बात करें तो आई थिंक एक जो ऐसी सीरीज है वो पहली बार कर रहे हैं, ऐसा करेक्टर पहली बार कर रहे हैं, तो एक तरह से होगा कि आप उनको वैसा करेक्टर दे रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, राइट? तो आपने ये कैसे सोचा कि ये करेक्टर मैं जरूर इनको दे सकता हूँ? दैट वन थिंग यू सॉ इन हिम। तो वन थिंग आई सॉ इन पुलकित वाज द डेडिकेशन, द कमिटमेंट, और मुझे पता था कि ये 8 महीने ट्रेनिंग करेंगे बॉक्सिंग में, ये मेरे साथ बैठेंगे रोज 6 घंटे ट्रेनिंग के बाद हर दिन अपने सीन्स रिहर्स करने के लिए, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस था। और मैंने इनके साथ भी काम किया है पहले एक फिल्म में, और मुझे पता था, और एक्टर मतलब कोई भी एक्टर ले लो, वो आई थिंक उनके जॉब प्रोफाइल में है कि जो भी आपको भाषा या डायलेक्ट या कुछ भी फ्लेवर लाना हो वो लेके आएंगे, वो पर वो एक उनका ट्रस्ट भी काम तो ही होता है। है, बट आप एक ट्रस्ट भी तो वो होता इस है। ट्रस्ट Yeah. आई, मतलब अपने यहाँ मेरे पहले कोलैबोरेशन इन दोनों के साथ, वहाँ से ट्रस्ट आई है, और क्योंकि मुझे पता था ये करेंगे, तो फिर वापस जाना तो मतलब इनमें एक जो कॉन्फिडेंस हमारे रिश्ते में है वो ये उसका नतीजा है। 10 साल Okay. का वीजा लगा था करण का हमारे साथ, ओके, बार बार आ सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, पंजाबी म्यूजिक के बारे में बताओ ना, मुझे थोड़ा पंजाबियत की तरफ लेकर जाना है कि हाउ मच यू गाइज लव पंजाबी म्यूजिक? I tell you one song ओके, जिसको मैंने सुना and I was like ये कोई कैसे लिख सकता है, सोच सकता है। हाँ, उस सॉन्ग के कुछ अल्फाज ऐसे थे, मैं तेरा या बलड सुनिए ओके, तू बैकबोन जट दी, बैकबोन, बैकबोन जट दी Backbone, that जी, backbone, yeah. मैं तेरा या बलड सुनिए तू Backbone. बैकबोन जट दी। I was like who is this? मतलब ये बायो के टीचर हैं, किसने लिखा है ये? How it just amazes me, पंजाब के लोग कैसे रोजमर्रा की चीजों को जो गानों में लेके आते हैं ना। मैंने ये गाना इतनी बार सुना और मैं हंसता था, एंड आई यूज्ड टू जस्ट वंडर ये कौन है भाई जो ये सब लिख रहा है। It's and Punjabi music, I think, for all over India, it's a no-brainer. Whenever you want to have fun, just be one with everyone, you just plug and play Punjabi music. Our co-writer Karmanya, वो अपनी जान बचाने के लिए शायद 2 अल्फाज हिंदी के ना बोल पाए, उसे अगर कभी लोगों ने पकड़ लिया तो, और वो सबसे पहले पार्टी में जो सबसे पहला गाना बजाता है वो सब he goes hardcore Punjabi. Yeah, he knows the lyrics. He obviously doesn't know the meaning, but he knows the lyrics. So yeah, Punjabi for everyone. He's a big Punjabi. He composes also. ओके, Today we have a music release, so that's all I want to say. ओके, टेल अस अबाउट इट।
नहीं नहीं, पंजाबी मुझे ऐसे लगता है कि अगर पंजाबी ना होते तो इस दुनिया में म्यूजिक का मजा नहीं That's आता true. सीरियसली। जब ढोल बजता है कोई सीधा खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैठ नहीं सकता है, आपको ठुमकना ही है, इट्स बेसिक। और अब तो पंजाबी म्यूजिक आई थिंक जैजी बी से जो एक वेव स्टार्ट हुई थी, जो एक आग लगनी स्टार्ट हुई थी, उसको हनी सिंह आगे लेके गए, फिर करण औजला है वो आगे लेके गए, एंड नाउ दिलजीत इज लाइक द प्राइड ऑफ इंडिया, right? Yes, and he's having so many collaborations. Yes, it is sad to lose such a beautiful artist like Sidhu Moosewala. कितना कितना ब्यूटीफुल फ्यूचर था उनके पास, उनके सामने। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है पंजाब, सीरियसली पंजाबी म्यूजिक आई जस्ट लव इट। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮੰਜੀਆਂ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਕਾਲਡ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੀਲਾ, ਦੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਚਮਕੀਲਾ, ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਥਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਆਲ, ਸੋ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਕੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਨਾਓ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੱਟਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੁਰੰਦਰ, I'm so so proud, like in Dhurandhar half of the ਉਹਨਾਂ ਨੇ artists ਛੱਡੇ are ਕੁਝ Punjabi. ਨਹੀਂ, ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। केरल में भी वो जो एक बहुत फेमस हुआ था खड़े विच ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ, ਹਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ ਬੱਬਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। Yeah. So last question, I'll wrap up this interview. What does glory mean to you guys personally, not professionally? One by one, please. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ही है बेसिकली। मैं जे ये चीज़ कमां तो चलो टाइटल की बात आप ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰजिंग फॉर मी। जो अगर मैं अपने इंडिविजुअली एज एन एक्टर की गल करा, एंड दैन ऑफ कोर्स फॉर माई कैरेक्टर ग्लोरी, मतलब एक त्याग, बलिदान, कष्ट, वो सब कुछ झोंकने के बाद एक ओलंपिक मेडल हासिल करने की जो चाह है, वो भूख है, दैट इज़ फॉर मी। Okay, Pulkit. ग्लोरी पर्सनली मेरे लिए, जब लोग मुझे दूसरों से कंपेयर करना छोड़ के दूसरों को मुझसे कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, आई थिंक तब मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे ग्लोरी हासिल हो गई। और उसके लिए जैसे इन्होंने कहा बहुत त्याग, बलिदान और कष्ट लगेगा, और जो मैं पे करने को तैयार हूँ। That's nice. Okay, Karan. ग्लोरी तो एक मंजिल है, लेकिन हमें, और अब उस रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन हमें आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एंजॉय दैट जर्नी, एंड यू नो बिकॉज आवर टाइम हियर इज़ लिमिटेड एंड एवरीवन वांट्स ग्रेटनेस, लेकिन you must be a good person when you are pursuing glory, and that's what I try to follow. Yeah. So all of this and for me glory is something which is coming on 1st of May on Netflix right now. It's that, if that's our glory right now for people, from our side to you guys. Please watch it. हम सब ने प्यार से बड़ी मेहनत से बनाई है. Please give it a chance. Thank you. ਤੇ ਲਾਸਟ ਨਾ ਇਨ ਗਲੋਰੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿੱਲੀ,
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਨਾ। हम जा ही रहे हैं आज शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਜਾਓ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓ। पूरा? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। हाँ क्या था फर्स्ट लाइन? ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ, ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ- ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਬੋਲੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। Okay. Thank you. Okay, so thank you so much guys. It was lovely talking to you and I hope कि ये glory हमेशा जिस तरह Netflix ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। Thank you so much guys. Thank you so much guys. You guys keep watching PDC Punjabi.